Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT and this is going to be a very important session for all of you because मेरे को पता है कि लास्ट के 30 days में we are quite confused and quite concerned कि अब क्या करें. Our mock test marks are stuck at times. कभी-कभी हम कुछ चीजों में अच्छा नहीं कर पाते and that is quite demoralizing. So how to make sure that our preparation in the last 30 days is on point? What things are to be compulsorily done? What things can be avoided is going to be a part of this particular session. I will give you certain very important pointers. Please strictly follow them. You can also write them down, particularly those pointers that you are still not doing. So the first point that I would like to point out in front of all of you is that we are still not paying a lot of attention to our weak subjects. It could be current affairs, could be maths, could be any reading subject also. For most of you, I think it's data interpretation or maths. हमें लगता है it's just 10 marks. Why should we focus too much on it? Even if we leave it and study the other subjects properly, we would be able to do the paper nicely. That is not how it works. I understand maths is not your favorite subject. You hate doing maths. You are really scared of it as well. Try maths. It's very simple for CLAT. It's basic averages, percentages, profit loss, simple interest, compound interest and so on. मुश्किल से 5-6 topics हैं. It's very much possible to complete it in the last month also. Nobody is asking you to get a 10 on 10. But at least the expectation is you get a 4 or a 5. So that you have at least something to show because this 4-5 marks will create a lot of difference. All of you who want to go to a top 5 or a top 7 NLU, you need to understand that the chances of your success is less than 1%. It's somewhere close to 0.5 or 0.6%. Basically, every 180 to 200 aspirants, only one aspirant goes to top 5 or a top 7. And we're quite sure कि उस 180 और 200 बच्चों में से कोई ना कोई तो मैथ्स ठीक से पढ़ के आएगा. And what if maths also is the easiest subject in the paper this time? है ना, तो you will lose out on a lot just because we were quite lazy about it. We were just scared about it. हमने उसको कोशिश ही नहीं किया. Maths is not rocket science, guys. Try it, believe me. आपने देखा होगा मैंने 12minutestoclat.com पे भी also launched a course for maths, particularly अगर उसमें प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट में, क्रिटिकल रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में, we have courses for everything for you. आप लोग वो कोर्सेज ले सकते हो. They're extremely affordable, very practical. You will get a lot of sectional tests also with them. अगर आपको फुल मॉक टेस्ट चाहिए तो आप फुल क्रैश कोर्स ले सकते हो जहाँ पर 5 सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर्ली, जो आपकी क्लासेस रह गई हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, है ना, और बाकी में आपको सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट बना सकते हो. जैसे मैंने आपसे मॉक टेस्ट की बात करी तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट. मॉक टेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ ना तो एग्जाम डे पर बस मुझे ये लगना चाहिए कि आज मैं कुछ एक यूजुअल चीज कर रहा हूँ व्हिच आई हैव बीन डूइंग फॉर एटलीस्ट 1 मंथ. मैं तो रोज ही मॉक टेस्ट लिखता हूँ या सेक्शनल टेस्ट लिखता हूँ. यू डोंट हैव टू राइट अ मॉक टेस्ट एवरी डे. राइट एटलीस्ट 2 to 3 every week. That will be very helpful. And on those days where you do not have a mock test, जो हफ्ते के आपके 4 से 5 दिन बच जाएंगे, do a sectional test in those particular days. In fact, do 2 sectional tests on every day. And analyze your full mock test as well as sectional test to understand कि गलती कहाँ हो रही है. Now the third point is particularly mock test में a lot of you feel demoralized. आपका देने का मन नहीं करता because आपको पता है कि देने के बाद में हमारे मार्क्स कम आएंगे. मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी गलतियों को और ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो. सो व्हेनेवर यू डू एनालाइज अ मॉक टेस्ट, ट्राई टू राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट शुड आइडियली हैव बीन करेक्ट, बट क्योंकि आपने ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, यू डिड नॉट रीड द पैसेज केयरफुली और द क्वेश्चन केयरफुली और मे बी द ऑप्शंस केयरफुली, या फिर सारे ऑप्शंस पढ़े ही नहीं, पहले आंसर कर दिया, राइट? दोज मिस्टेक्स हैव टू बी रिटन. कम से कम आप हर मॉक टेस्ट में 10 मिस्टेक्स ऐसे निकाल लोगे जो आपने अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से करी है, डिड नॉट रीड दैट करेक्टली. ये मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकते. क्लैट ऑलवेज गिव्स यू स्कोप टू मेक सम मिस्टेक, जो चीजें आपको नहीं आती, बट आते आते गलती करने का स्कोप क्लैट नहीं देगा. फिर वो दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाए. अगर सोचो आपने 10 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए, इसका मतलब 2.5 नंबर तो माइनस हो गए और 10 जो थे वो मिले नहीं. 12.5 नंबर का डिफरेंस आ गया. कितना बड़ा डिफरेंस है. आप अगर 60 ला रहे हो आप 70 क्रॉस कर जाओगे, 50 ला रहे हो आप 60 क्रॉस कर जाओगे. तो लास्ट मंथ में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. पीपल ड्रास्टिकली इंप्रूव करते लास्ट मंथ में एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी provided you have the right guidance, right strategy and a good schedule also. इसलिए जो मैं अपनी क्लासेस की बात करता हूँ ना, हम क्लासेस में ऐसे नहीं करेंगे दिन के 8 घंटे क्लास कर लिया, आपको पता नहीं चल रहा कौन से अटेंड करनी कौन से नहीं करनी. क्लियर है, दिन में 3 से 4 क्लास होगी, वो प्रॉपर्ली अटेंड करो. उसके अलावा जो टेस्ट दे रहे हैं उसको ठीक से करो, है ना, और जो बाकी आपका समय बचता है उसमें प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर्स के बैकलॉग्स क्लियर करो. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको सही रिसोर्सेज और सही चीजें बता दी जाएंगी. And then it's up to you to make use of it to make sure कि आप उसको ठीक से अच्छे से कर पाओ. Again, we are trying our 100%. आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा. अब take one day at a time now. This brings me to my fourth point. बहुत सारे स्टूडेंट इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि अगर एग्जाम ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, बाकी दोस्तों को क्या बोलेंगे, खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन है उसका क्या करेंगे. देखो, एग्जाम ठीक होना और ना होना इज नॉट इन आवर हैंड्स एनीवे.
हमारे हाथ में प्रेपरेशंस है। सो जब लास्ट के महीने में जब आपकी एंजाइटी बढ़े, जब स्ट्रेस बढ़े ना, तो ये सोच लिया करो कि वाई एम आई स्ट्रेस्ड। अगर आपकी प्रॉब्लम एक कंट्रोलेबल है कि भाई मेरे को मैथ्स नहीं आता इसलिए मेरे को स्ट्रेस है, ठीक है मैथ्स कर लेंगे। मेरा करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक है करंट अफेयर्स कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि यार कट ऑफ ज्यादा हो गई तो, पेपर मुश्किल आ गया तो, अगर मेरे से ठीक से नहीं हो पाया तो, मेरी तबीयत खराब हो गई तो, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं ना, तो लीव इट टू डेस्टिनी। ठीक है, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। आप सिर्फ उतनी चीजों का ध्यान रखो जो आपके हाथ में है और उसको अच्छे से करो, उस पर तो एटलीस्ट जस्टिस करो। हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें ना उसको तो ठीक से करते नहीं है, और उसके बाद ना उन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं जो हमसे एक्चुअली मतलब हो सकता है, लेकिन सॉरी हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन हम उस पर पूरा फोकस करते हैं बिकॉज उन चीजों को देखने में मजा आता है। अभी अगर मैं एक वीडियो बना दूं ना कि क्लैट 2024 का कट ऑफ क्या होगा, सब देखने लग जाएंगे। मैं एक वीडियो बना दूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इनको ठीक से पढ़ना है, आधे लोग देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, वो सब फालतू की चीजों में मजा आ रहा है। तो हमको थोड़ा सा अपना भी वो मोडस ऑपरेंडी है जिसको बोलते हैं कि चीजों को करने के तरीके को सुधारना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ, टेल योरसेल्फ एवरी डे, सेल्फ बिलीफ रखो। एक मॉक टेस्ट से इतना दिल नहीं लगाना है कि हम लोग तो पूरे डिमोरलाइज हो गए, मॉक टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा। उसको एक चैलेंज लो कि मेरे नंबर कम आए तो कैसे आए, उसको एनालाइज करो, ठीक से समझो और कोशिश करो कि अगले मॉक टेस्ट में बस उससे ज्यादा नंबर आ जाए, उसको तो बीट करके मुझे दिखाना है। राइट? ऐसा अंदर एक जील होना चाहिए। जिस जील से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना लास्ट मंथ में, उसको जाने मत देना। लास्ट मंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। इसमें आप चाहे 90 स्कोर कर रहे हो, चाहे 80 स्कोर कर रहे हो, चाहे 40 स्कोर कर रहे हो, सब लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हो और सब लोग प्रिपरेशन से बाहर भी हो सकते हैं, फिर डू नॉट मैनेज दी स्ट्रेस लेवल्स प्रॉपर्ली। बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। मैं आपसे रोज मिलूंगा किसी न किसी तरह से, कोई कॉन्सेप्ट के साथ, कभी कोई स्ट्रैटेजी के साथ। सो मेक श्योर टू फॉलो अस वेरी वेरी रिलीजियसली, बिकॉज ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी मेंटल स्टेट को अच्छा रखने के लिए। All the educators on my platform, you can obviously download the app and obviously visit our website also 12minutes2class.com। सबको बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है कि भाई इट्स नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस, आपको स्टूडेंट्स को मेंटली भी बहुत स्टेबल रखना है। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर कि आपके लास्ट दिनों में आप मेंटली बहुत स्टेबल रहो, चीजों को बहुत ही अच्छे तरह से आगे बढ़ाओ। ऐसा मत करो कि हमने तो पहले ही हार मान ली, हमसे तो नहीं होगा। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, है ना। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, तो बाकी होना ना होना इज नॉट इन आवर हैंड्स एनीवे। राइट? ऐसे कोई भी गारंटी मत लो कि भाई मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो कर ही लूंगी। बहुत ज्यादा होप्स मत रखो इस पॉइंट पर। अपना कर्म करते चलो, फल देना ऊपर वाले के हाथ में। राइट? अपने जो आपकी तरफ से जो हो सकता है ना उस पर 100% करो। वहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन हियर एंड देयर वो मत करना, क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं कि खुद से हम ठीक से काम करते नहीं है। फिर हमारा जब अच्छा नहीं हो पाता ना तो हम किसी और पर ब्लेम कर देते हैं कि भाई पेपर ही डिफिकल्ट आ गया था, हम कैसे करते। पेपर सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट आया था? पेपर सबके लिए डिफिकल्ट आया था, सब लोग सेम प्रिपरेशन करके आए थे। राइट? पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन करके करना है। राइट? मैं और मेरी टीम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें आपके लास्ट के एक मंथ में प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। यू कैन जॉइन अस, यू कैन जॉइन द क्लैट रेवोल्यूशन विद अस एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोग अच्छे एनालिसिस में जा पाओ। हम लोग को बिल्कुल परफेक्ट राइट काइंड ऑफ ब्रीफ गाइडेंस देंगे आपको कि जो चीजें जरूरी है। ठीक है? सो दीज वर सर्टेन डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन द लास्ट मंथ। प्लीज खुद को बहुत ज्यादा सेन रखो, हर दिन सुबह एक जील के साथ उठो, एंड आई एम 100% श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। कीप स्माइलिंग, कीप द स्पिरिट्स हाई, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।